नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। कैसे हो बच्चे आप लोग? मेरा नाम शेख जाहिदा है और मैं खोज प्रकल्प की तरफ से आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ। खोज प्रकल्प। अच्छा बेटा, खोज का मतलब क्या होता है? खोज मतलब ढूंढना। खोज मतलब क्या? और पता करना। खोज का मतलब क्या है? ढूंढना। यस यश। खोज का मतलब है किसी की मदद करना और या जानकारी पाना। जानकारी पाना। असल में ऐसा है कि मतलब जब खोज के क्लासेस चलते हैं, जब हम जाते हैं वहाँ पर, तो बच्चे काफ़ी मतलब खुश हो जाते हैं बच्चों टीचर्स को देख के, क्योंकि हम लोग वहाँ पे एक टीचर बन के, तो हमारे टीचर्स जाते नहीं, एक दोस्त बन के जाते हैं, तो काफ़ी हद तक दूसरे जो टीचर्स हैं स्कूल बिल्डिंग में, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे एक दूसरी जो बाहर से एक टीचर आ रही है उसको इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि वो उछलने कूदने लगते हैं, जबकि हम उनके साथ इतने देर तक रहते हैं, लेकिन वो हमको इतना देख के खुश नहीं होते हैं जितना उनको देख के खुश होते हैं। तो क्या डिफरेंसेस है हमारे टीचिंग में और उनके टीचिंग में, और एज अ टीचर हम दोनों में क्या ऐसा फ़र्क हो सकता है? We chose middle school, by the way, in the pedagogical process, which was in the initial stages, for 2-3 reasons. One is we felt it was the most important stage in terms of a pedagogical, not too young, and not maybe not 8-9 standard, where the pressures of exams and the pressure of the system is already weighing on you, and maybe you're already beginning to form some ideas which are very firm. Though some schools have also insisted we do it in the 3rd and 4th as well, so we've experimented with the family tree and stuff even earlier. So somehow it was through that evolution that we thought 10, 11, 12 was a good year. And the other reason for having 3 years, so there was a bit of pragmatism and ideology or theoretical understanding that you could not do something like this in one session or 1 year. You need to revisit the processes, you need to revisit some of the modules you've created. The whole engagement with, say, self-portrait or problem solving or even family histories is not something you do in one class or period and forget about it. From the personal and the political in both ways, because in one way I love children, by and large, children of all ages, and I've also been very crazy about history all along, and hated the textbooks. And then you found that history is just possibly the most boring subject for children and for teachers, because unless you have a good history teacher, you won't get drawn to the subject. I had 2 very good history teachers. And then came, one's evolution as a journalist, activist, and through that process, engagement in the women's movement, labor movement, and then of course the anti-communal movement, which took over everything else. So then 92-93 happened in Bombay, and you saw suddenly this whole horrendous schism that the right has created in society and the state, by permeating the state, actually entering the classroom. That was the whole movement for the demolition of the Babri Masjid had done. It broken down any sort of, veils of decency, so nothing was left. It was all out in the open. So I was very fortunate. There was this particular principal from the Bombay International School who encouraged this conversation, and I felt very inclined to see whether something could be pedagogically developed. And actually the Bombay International School, it's a school run by parents, and the principal and the board, which is run by parents, encouraged me along with a few other teachers in the school to experiment with developing a pedagogy. So that's how Khoj evolved and began as a research project, working with a couple of schools to see how one can engage, because the idea was not simply the idea that you had to engage. So there was history, there was the need to make history and social studies more interesting for children, but there was also this very urgent need to somehow do it in such a way that the prejudice and bias that you're seeing and the hate letting that you're seeing also gets addressed. That is a broad context how it started, हम जो है अलग अलग तरीके से टीचर्स के साथ में इतिहास के ऊपर कार्यशाला वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड 4th का
महाराष्ट्र के शिवाजी जिनका जो टाइटल के ऊपर बुक है वो देखा था, जिसमें ज़्यादातर वायलेंस ही वायलेंस दिखाया गया है, जिसमें ऐसा दिखता है पढ़ने के बाद में कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मतलब हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ एक जंग। तो जिस तरीके से बच्चों में नेगेटिविटी जाती है, मराठी स्कूल में अगर हम बात करते हैं कि औरंगजेब जो है किस तरीके के शख्स थे, तो वो जालिम बादशाह के तौर पे, उर्दू स्कूल में जो है शिवाजी महाराज को लेके बच्चों के जहन में ये है कि शिवाजी महाराज एक पहाड़ी चूहा था, वो छुप के वार करते थे, इस तरीके के बच्चे बात करते हैं। जबकि वो एक उनकी एक स्ट्रैटेजी थी किस तरह से जंग करना, गुरिल्ला वार वगैरह, जो एक काफ़ी मतलब मानी जाती है, लेकिन उसको अलग सेंस में बात करना, मतलब बच्चों के दिमाग में वो गलत चीज़ जो है वो जा रही है। तो इस पे हमने टीचर्स के साथ बात की कि आपको नहीं लगता है कि मतलब जो स्टैंडर्ड 4th की जो बुक है उसमें हम सिर्फ ज़्यादा वायलेंस दिखा रहे हैं, और उसमें जो है ज़्यादातर एक धर्म और दूसरे धर्म के अगेंस्ट ऐसा दिखाया जाता है। तो टीचर्स को भी काफ़ी हद तक, बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिनको लग रहा था कि हाँ ये चीज़ें उसमें है। For me, a very curious period in modern Indian history is 1905 to 1935 or 47, when we had independence and partition. Because in 1905 you had this attempt of the first crass attempt of the British to partition Bengal, and it was opposed tooth and nail by every community, all Bengalis, Hindu, Muslim alike. You had that famous Rabindra Sangeet being written by Tagore, which was sung on the streets of Bengal, and you had Muslims and Hindus coming on the streets and tying rakhis to each other, that we will not be partitioned. I mean, it was a strong resistance. And what happens to all of us? Sadly, prefer not the inclusive sense of nationhood, but an exclusive one. So it was not simply Muslim League and Jinnah, though of course he was responsible, and one doesn't want to underplay that. But there was a Hindu Mahasabha and Savarkar, who wrote Hindutva, who said the basis of the Hindu nation has to be only, one of superiority of the Hindu race. There was the Rashtriya Swayam Sevak Sangh. There was even the Akali Dals who were talking about a Sikh nation, etc. So I think something happened to fracture this amazing movement we had for almost 150 years. Badshah Khan, coming back to Shanti Gandhi, is one man who, if he is there in your book today, whether it's in India, Pakistan or Bangladesh, will immediately be able to open the young mind to the fact that not one community or the other was responsible for something. He broke down when Congress accepted the partition resolution. And he said, "You're throwing me to the wolves," were his exact words. Now, this was there in my textbook when I grew up. And it vanishes from the mid-80s in Maharashtra for the simple reason that you have a politics dominating which wants people to believe that all Muslims are traitors, all Muslims are marauders, all Muslims have built their masjid over broken down temples. So once history becomes a tool of manipulation for a certain politics and ideology, there's a problem. Our top historians, and let's stick with history for a moment, I mean, when do their ideas and their works get across to a teacher in, say, Bombay, Dhule, Delhi, Chennai, Kolkata, anywhere? So many of the things we've tried to do is actually have these workshops where you have some of our top historians directly engaging for a couple of days with the school teacher. I still feel the college level education has possibilities, but we really should have been concentrating much more on the primary levels, secondary levels, which we are not doing. And those workshops have been extremely enjoyable. We've had, we've had the Romila Thapar, K.N. Panikkar, Irfan Habib School, Saab School of Aligarh, Medieval History, sending down their professors, even though he couldn't come himself. Keshuvan Veluthat on early medieval. Our top historians who are actually breaking away from the norm and doing novel work, spending time, and for them they found it rewarding. I mean, for they have their kudos, they have their accolades, they've got their status and prestige in their community of academics. But the fact that for them, their real fulfillment also came and they actually could transmit some of these ideas in a very simple form, understandable form for the school teacher. And that led to a very interesting process for Khoj in the schools that we were engaged in, is to try and tell the school institutions, the trusts that are running the schools or the state that is running the school, that please allow the teacher time for thinking about her subject or his subject. It's not enough simply to give her a textbook and say, finish the classes, pass the exam. She's dealing with a discipline. And here I'm obviously talking about history and social sciences, but it could apply to anything what I'm saying. She must have a couple of months in the year to be able to go revisit that discipline, do a little research on her own, do a little bit of thinking on her own. So she brings that thought and that innovation back to the subject. Otherwise, if she's going to be told mechanically that you do this textbook, then she's going to be mechanical about the subject. So there have been very interesting efforts
not entirely consistent, but that is very much part of the Khoj effort, is to get the institutions that are running the schools, whether it's state or private, to allow this private research of the teacher to emerge, which then gets her back to the library, gets her back to the historian, gets her back to the social scientist, and what are the new thoughts emerging? Field research, you know. So we have had teachers do interesting work on the Shivaji's relationship with the Mughal dynasty, the forts of Maharashtra. Has caste been dealt with fairly in our textbooks? You know, these and teachers picking up these subjects for short research papers. 2 or 3 major concerns were there, which one kept trying to dovetail and develop a consistency and a consistency of approach. One way is that, you know, that somehow, if you look at the Indian textbook, the history textbook, I mean, it's much reviled when it becomes communal, and it should be, whether it's communal or caste prejudice or gender prejudice. But quite apart from that, I just feel that the textbook is eventually going to be the only, in a country like India, where you have such a vast disparity between the very rich and the middle class and the, you know, the working class, you need to have a textbook which itself is a vehicle to open up certain ideas and to open up certain thought processes in the child and the teacher. And yet, while we are developing this amazing theoretical research in history, in other branches of social sciences, it's not getting transmitted into the education system and the process in the schools. जब रिसेस होती है तो खाना जल्दी खाते हैं और यहाँ पे भाग के आते हैं वो, या फिर ऐसा होता है कि स्कूल में टीचर नहीं है तो यहाँ पे आते हैं और लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वो। यहाँ पे टेबल लेके पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के टीचर्स उनको कुछ प्रोजेक्ट देते हैं या फिर कुछ जानकारी उनको चाहिए होती है पर्टिकुलर विषय के बारे में, तो वो ऊपर आते हैं और कहते हैं कि इस विषय के बारे में हमें चाहिए। तो हम, या फिर उनके स्कूल के टीचर्स भी उनको कहते हैं कि ये अगर प्रोजेक्ट उन्होंने कुछ दिया होता है तो स्कूल के टीचर कहते हैं कि खोज के लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी वो किताब। अगर हमारे पास उस वक्त वो किताब नहीं मौजूद है तो हम इंटरनेट के ज़रिए बच्चों को मालूमात दिलाते हैं, लेकिन उनको निराश यहाँ से नहीं जाने दिया जाता। बहुत अटैचमेंट बहुत होती है, मतलब सिर्फ उर्दू में या मराठी में ऐसा नहीं होता, सभी माध्यम के बच्चे मुझसे बहुत अटैच होते हैं कि ये दीदी लाइब्रेरी में रहती है और हमेशा बच्चे आते हैं तो मैं उनके साथ यहीं पे बैठी रहती हूँ कि उनको कुछ लफ्ज़ नहीं समझ में आया। ऐसा भी होता है कभी कभी 7वीं के बच्चों को भी पढ़ना नहीं आ रहा है, तो फिर मैं जिनको पढ़ना नहीं आता उनके साथ मैं बैठती हूँ और उनको कहानियाँ पढ़कर बताती हूँ। हमारे यहाँ पर कॉरपोरेशन की 2 इमारतें बनी हुई है कौसा और मुमरा के बीच में, जबकि यहाँ पे 6.5 से 8 लाख की आबादी है। 1990 से पहले यहाँ पे जो है छोटी छोटी 2 इमारतें थी, एक कौसा में थी, एक मुमरा में थी। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए वो छोटी इमारतों को, चालियों को तोड़ के यहाँ पे इमारत बनाई गई और इस तरीके से कौसा में और मुमरा में 2 स्कूलें शुरू हुई। 1990 के बाद तेज़ी से जो है ये आबादी यहाँ की बढ़ी। 1992 के अंदर दंगे जो हुए बॉम्बे के, उसके बाद इसकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी। भीड़ की शक्ल में लोग यहाँ के बसने लगे। उस आबादी को देखते हुए यहाँ पर मुमरा और कौसा के बीच में जो है कम से कम 4 से 5 इमारतें होना चाहिए था। आज हमारे यहाँ पर कौसा की इमारत के अंदर 1 स्कूल चलती थी, लेकिन बच्चों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए हमने 1 की 2 किए, उसी इमारत के अंदर उसके विभाजन करते करते हमने वहाँ 6 स्कूलें किए। लेकिन वो बच्चों की तादाद, वो 1 स्कूल की इमारत बनी हुई है, एक स्कूल के बच्चों की, उसके अंदर हम 8 स्कूलों के बच्चे बिठा रहे थे। तो इस एतबार से हमारे मुमरा और कौसा के फासले के बीच में, बल्कि कल्याण फाटे तक लेना चाहिए, यहाँ पर उर्दू मीडियम की स्कूलों के बच्चों की तादाद ज़्यादा है और उर्दू स्कूलों की जो है इमारतें कम हैं, लेकिन उसका बनना, उसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा ही है। उसमें आज भी बच्चे जो है 2-2, 3-3 डिवीज़न एक साथ एक रूम में बैठ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और उसी के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। Just a few months ago, in one of the far out suburbs of Mumbai, we had a building collapse, you know, and we had children getting injured because the building was not safe enough to study in. You don't have bathrooms in the school we visited, in the Kalyan school we visited, where you've had a string of extremely progressive principles. I mean, our experience of that school, Prabodhan Thakare, is amazing, but it doesn't have a toilet, and we all had to go out to the toilet, which is the Sulabh Sauchalaya,
the coach teachers who go regularly not asked to pay, but children are not allowed to pay, but the children and the girls don't have a separate toilet. Suddenly you find when you're dealing with these schools that the midday meal, which is supposed to be rich, nutritious, is definitely rich and nutritious in say 50% of the cases. Other cases there are lots of stuff going on there. So then the question for us is that if coach is going to have a really meaningful engagement in terms of drawing in the child emotionally to the subject that we want to teach, the teacher substantively to the approach we have, can you do it without also engaging in these actual basic issues? मैं 8-10 साल से देख रहा हूँ कि खोज जो है वो हमारी इस स्कूल के ताल्लुक से इसके बहुत सारे मसले थे। पीने का पानी का मसला था, बाथरूम संडास का मसला था, बच्चों की बैठने की जगह का मसला था। ये लोग लगातार जो है ना इस ताल्लुक से जो है स्कूल का दौरा करते हुए पेरेंट्स से मिलना, बच्चों से मिलना, टीचरों से मिलना, फिर वो क्या क्या मसाइल है सारी चीज़ें लेके उसको माहिती अधिकार के अंदर जो है प्रशासन से मालूमात लेना और फिर जाके प्रशासन से उस ताल्लुक से अपना कॉरेस्पॉन्डेंस करके लड़ने का काम लगातार कई सालों से खोज कर रही है। और इस स्कूल के बहुत सारे मसाइल हल करने के अंदर खोज का बहुत बड़ा हाथ है। ये अकेले स्कूल के ताल्लुक से नहीं बल्कि चाहते हैं कि भाई एजुकेशन का नुकसान बच्चों का ना हो और पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस आए कि वो भी अपने मसले को समझे कि हमारे बच्चों के साथ क्या खेल हो रहा है, किस तरीके से जो है हमें अपना हक मांगना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेके खोज काम कर रही है। उसी के साथ साथ वो जहाँ रहते हैं वो एरियाज़ में जैसे कि पानी की समस्या थी, लाइट की समस्या थी, जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पे भी मुमरा जो एरिया है मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे लोड शेडिंग के नाम पर मतलब जो है वहाँ पे ऐसा पूछा, जैसे यहाँ पे लोड शेडिंग था तो हम पूछते थे बम्बई में कि लोड शेडिंग का टाइम कितना है, लाइट जो है कितने टाइम तक जाती है। लेकिन एक वक्त था मुमरा में ये पूछा जाता था लोड शेडिंग के नाम पर लाइट कब आती है, मतलब 1 घंटा या 2 घंटे के लिए लाइट आना। तो यहाँ तो लोड शेडिंग का टाइम बताने का तरीका अलग था, लेकिन वहाँ ये पूछा जाता था लाइट कब आएगी। तो ये समस्या की वजह से स्कूल के अंदर भी लाइट्स नहीं होती थी तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड का दिखता नहीं था, बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती थी कि कैसे पढ़े, पंखा नहीं होता था। तो जिस तरह के हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, जिस तरह का एक अच्छा एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा था। तो उसके लिए हमने वहाँ के जो सोशल फील्ड में जो काम करने वाले और भी साथी हैं उनके साथ बात किया, फिर अलग अलग जो पॉलिटिकल तौर पर जो वहाँ पर कॉरपोरेटर्स हैं उनके साथ बातचीत की कि ये जो समस्या बनी हुई है इसकी वजह से स्कूल एजुकेशन भी दूर मतलब छूटा नहीं है, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है क्लासरूम में बैठना। तो फिर उसके लिए ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कई बार करने के बाद में एक मसला ऐसे हल हुआ कि कम से कम एटलीस्ट स्कूल में लाइट होना चाहिए, उसके लिए कुछ इंतज़ाम हो सकता है क्या। मुमरा के स्कूल में सुबह दोपहर में अलग अलग टाइम पे इन्वर्टर्स चालू किए गए हैं कि बाकी समय में बच्चों को उसकी दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद सिलसिले में भी टीचर्स के साथ हमने कोशिश की कि पेरेंट्स और टीचर्स का भी रिश्ता कैसे बिल्डअप हो, तो उसको लेकर भी हमने काफ़ी हद तक के टीचर्स के साथ में काम किया है, उनसे बात किया है। और मुमरा एक हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण रहा है जहाँ पे हमें इसमें ये रिश्ता बिल्डअप करने में काफ़ी मतलब सफलता भी मिली है। पेरेंट्स मीटिंग जिस तरह से मतलब स्कूलों में ऑर्गेनाइज की जाती थी तो उसमें हमने देखा था कि पेरेंट आते थे मीटिंग में, लेकिन जब प्रिंसिपल जो है जो उनको बोलना था वो अपना बातें बोल के चले जाते थे कि आप, और टीचर्स जो है आपके बच्चे ने ऐसा रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो ज़्यादा मतलब उनको बताई जाती थी। और क्लास में उस वक्त मीटिंग में पेरेंट्स सवाल तक नहीं पूछते थे कि आप ये जो कह रहे हैं उसमें हमें भी बहुत कुछ बोलने का मौका दीजिए। तो हमने क्या किया मतलब जो है पेरेंट्स को तैयार किया कि आपने अपने अधिकारों के बारे में भी बात करना चाहिए, आपको अधिकार है, आपका बच्चा सरकारी स्कूल में मुफ्त में कंपलसरी एजुकेशन पाने का उनको एक राइट्स है। हमारा जो काम इंडिया लेवल पर एजुकेशन पर और हेल्थ के ऊपर रहता है, जो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर पे जो स्कीम रहती है वो हम लोग आरटीए के माध्यम से निकाल के कम्युनिटी एरिया में जाके लोगों तक देते हैं। जैसे कि मिड डे मील का दर्जा कैसा होना चाहिए, स्कूल का बजट कितना, सरकार के तरफ से कितना बजट पास होता है स्कूल के बच्चों के लिए, क्या क्या स्कीम्स रहती है, मिड डे मील कैसा होना चाहिए, बच्चों को स्कूल में यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह कैसा कितने मिलने चाहिए, किधर तक होनी चाहिए, ये सब डिटेल्स हम आरटीए के माध्यम से निकालते हैं और बच्चों को दे देते हैं। जैसे कि हमारे शिक्षक लोग कम्युनिटी एरिया में जाते हैं तो कई सारे मुद्दे निकाल के आते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल टीएमसी में देखेंगे हम तो टीएमसी में 7वीं के बाद स्कूल ही नहीं था, तो बहुत सारे बच्चों की ड्रॉप आउट हो रही थी
और ड्रॉप आउट होने के कारण लड़कियों की शादी भी जल्दी हो रही थी। 7वीं के बाद वहाँ पे सरकारी स्कूल 8वीं से कोई नहीं था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल के साथ जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी ये बात को एक्सेप्ट किया कि 500 के लगभग 500 के करीब हर साल बच्चे ड्रॉप आउट्स होते हैं। खोज ने एक सर्वे किया था जिसमें हमने देखा था कि वहाँ की आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ख़राब है। उनके पास एक ही ऑप्शन बचता था, बच्चा है तो 7 के बाद में या तो काम पे लगा दें और लड़की है तो उसकी शादी जल्द से जल्द करा दें। फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहती हूँ कि शिमला कौसा एरिया में जो एक ही बिल्डिंग में 7 स्कूल्स रहते हैं मीडियम वाइज। एक ही बिल्डिंग में रहने के कारण बच्चों की संख्या भी बहुत रह रही थी। बच्चों को बैठने के क्लासरूम को बैठने के लिए भी जगह नहीं होती थी, टीचरों की कमी रहती थी। उस सिचुएशन में भी हमने ऐसा हल निकाला कि बच्चों को किधर तो स्कूल होना चाहिए। तो अब हमारे शिक्षक लोग कम्युनिटी एरिया में जाके ढूंढ रहे थे कि किधर टीएमसी के अंडर कोई जगह है, प्रोजेक्ट है उधर चलाने के लिए। तो हमने पहले ओरली ऐसी जानकारी इकट्ठा की, बाद में हमने ऐसा सोचा कि आरटीआईएस के माध्यम से क्यों ना हम वो जगह कौन सी है देखना पड़ेगा। तो हमें मालूम पड़ा कि कौसा शिमला पार्क में जो टीएमसी के अंडर प्रपोज़ल पास हुआ था 2008 में, लेकिन उसको दो साल हो गए थे, फिर भी कोई अमल में नहीं आ रहा था। तो हमने आरटीआई से वो प्रस्ताव का भी ठहराव का भी मंजूर हुआ है। स्कूल के लिए कौन सी ज़मीन है शिमला पार्क में, वो सब डेटा निकाल के हमने देखा। तो उसको 2008 में ठहराव पास हुआ था, लेकिन अमल में नहीं हो रहा था। तो 2010 में हमने आरटीआई निकाला और बाद में उधर शिमला पार्क में जो बिल्डिंग चल रही है उसको स्कूल की बिल्डिंग अभी बांध रहे हैं उधर। तो कैसे उसको ख़त्म करना चाहिए, इसके लिए हमने सोचा कि हम 8वीं से सरकारी स्कूल के ऊपर वहाँ पर काम करेंगे, जिसमें हमें पालक प्लस स्कूल टीचर और पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि सबके साथ में ही ये काम हो सकता था। मेरा नाम है कौसर शेख और मेरी बच्चियाँ 124 नंबर स्कूल में म्यूनसिपलिटी स्कूल से पढ़ी है और वहाँ पर सिर्फ 7वीं क्लास तक ही स्कूल थी। 8वीं से हम लोग को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम लोग के हालात कुछ ऐसे हैं कि हम डोनेशन वगैरह भर नहीं सकते। तो इसके लिए हमने जाहिदा, नूरजहाँपा और तिस्ता मैडम उन लोग का साथ लेकर खोज संस्था की तरफ से हमने ये साथ लेके 8वीं की स्कूल का हमने मतलब शुरुआत की है कि हमारे बच्चों को 8वीं क्लास चालू करो। फिर हमने कारपोरेटर के पास भी गए, उनसे भी रिक्वेस्ट किए। उसके बाद में हम ये सब होने के बावजूद नहीं हो पाया, इसके बाद में हम लोग थाना महानगर पालिका गए। हम लोग का सब क्लास पास हो गया, क्लास हम लोग का पास हो गया। तो इसके बाद में हम लोग का कौसा में नहीं आया, कौसा से उधर मुमरा चले गया। तो हम लोग ने सब पेरेंट्स लोग ने फिर हम लोग की खोज टीचर को हम लोग ने बोले कि ऐसी ऐसी बात है टीचर। तो खोज टीचर ने वाले अच्छी बात है। हम लोग वापस फिर एक लेटर लिखे, खोज टीचर ने लेटर लिखने के बाद वहाँ का ब्रांच फिर यहाँ लिए, बोले वहाँ के बच्चे लोग वहाँ रहने दो, यहाँ के हमारे यहाँ से बच्चे मुमरा आने के वास्ते तकलीफ होंगे, इतना रिक्शा भाड़ा हम लोग की गुंजाइश नहीं है इतना पैसा खर्चा करने का से। तो फिर वापस यहाँ 8वीं 9वीं 10वीं यहाँ करे। मेरे बच्चे लोग थाना महानगर पालिका इधर म्यूनसिपलिटी स्कूल में पढ़ते थे, पहली से पढ़ते थे। नूरजा मैडम से, तिस्ता मैडम से, उन लोग से ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि तुम लोग हमारा साथ दो, तो हम तुम्हारे साथ हैं। फिर हम लोग जहाँ बोले वहाँ हम लोग जा के मतलब गए हैं। सबसे यहाँ तक है कि मराठी स्कूल में बाहर हम लोग ने धरना लिए थे, तब भी ये लोग मौजूद थे। और